Assalamu alaikum. Welcome back to Human-Computer Interaction. Today is lecture number 16, and the title of today's lecture is the HCI Process and Model. Before we start today's lecture, let's just take a very quick recap of what we studied in the last lecture. In the last lecture, we were discussing interaction styles and interaction paradigms. In the last lecture, we took a detailed look at one interaction style, which is the WIMP interfaces: windows, icons, menus, and pointers. WIMP interfaces. हमने ये भी देखा था कि paradigms क्या होते हैं. What are paradigms in general? And what are interaction paradigms? We then went on to discuss different kinds of interaction paradigms, paradigm shifts. For example, we looked at batch processing, time sharing, networking, graphical displays, personal computing, the World Wide Web, ubiquitous computing. We also looked at some new interaction paradigms. For example, wearables, wearable computing. We also looked at other types of paradigms such as physical virtual integration and augmented reality. So until now, we have been discussing the very fundamental basics of human-computer interaction. एक तरफ तो हमने ये देखा है कि human beings क्या हैं. What are the essential capabilities of humans? उसमें हमने cognitive processes consider किए. We then looked at what the ability of computers are in terms of input and output devices. Then we looked at how the interaction takes place between the human and the computer. तो उसमें different styles क्या हैं और different paradigms क्या हैं. Now it's time to move on. Now it's time to look at the more practical aspects of human-computer interaction. And when we say about the practical aspects, तो इसमें processes आ जाते हैं, इसमें principles आ जाते हैं, और इसके अंदर different methods और techniques आ जाते हैं. Today's lecture is a very, very important and critical aspect of human-computer interaction. So let's take a look at what we will discuss in today's lecture. In today's lecture, our primary focus will be on different life cycle models. हम ये देखेंगे कि वो क्या processes हैं, वो क्या methodology है, जिसके तहत आजकल different devices बन रही हैं और different systems बनाए जा रहे हैं. And in addition to this, we will discuss various issues which are relevant in the HCI process. Now, some lectures ago, we talked about the paradox of technology. Now, what do we mean by the paradox of technology? Well, consider the kinds of products that we are using today. जो technical products हम इस्तेमाल करते हैं, जो software systems इस्तेमाल करते हैं, digital devices इस्तेमाल करते हैं, the various applications, the various computer-based applications, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, these applications and systems are causing problems. They are causing so many problems. Let's take a look at what kinds of problems they are causing. A common scenario is a website is aesthetically very beautiful, technically perfect. Content भी बहुत अच्छा है, but users can't find information. In fact, according to one expert, they can't find information 42% of the time. Another problem is that 62% of web shoppers give up looking for the item they want to buy online. And similarly, some other research says that 50% of potential sales are lost because people cannot find the items they are looking for when they go online. When we talk about websites, 40% of users who have a negative experience, the first time they visit, they do not come back. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है?
इसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं. यूजर्स आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. कंपनीज आर लूजिंग मनी. Companies are losing massive amounts of money. Talking about software maintenance costs, 80% of life cycle costs occur after the product is released. यानी मेंटेनेंस फेज में. और उसमें से भी 80% वो होती हैं, यानी वो कॉस्ट होते हैं जो कि यूजर रिक्वायरमेंट्स पूरे ना करने की वजह से, due to unforeseen or unmet user requirements. And only 20% are due to bugs. According to another estimate, 63% of software projects, they exceed their costs. And the fundamental reasons are because of overlooked tasks and various issues in requirements. तो होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि एक यूजर वो आपके सिस्टम को, वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर, वो डिवाइस जो आपने बनाई है उसको इस्तेमाल करे, और जब वो इस्तेमाल करे उसके साथ, उसको इंटरैक्ट करे, तो उसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो. एंड बिकॉज ऑफ दैट गुड एक्सपीरियंस ही बाइज योर प्रोडक्ट एंड ही ऑल्सो रेकमेंड्स योर प्रोडक्ट टू अदर पीपल. तो यूजर आपके सिस्टम को इस्तेमाल करता है, द यूजर इज हैप्पी बिकॉज हिज एक्सपीरियंस वॉज गुड. वो आपका प्रोडक्ट खरीदता है, यानी आपको पैसे देता है. लेकिन सिर्फ ये नहीं, बल्कि वो और लोगों को भी रेकमेंड करता है. फिर आगे से वो भी आपके प्रोडक्ट और सिस्टम को खरीदते हैं, और फिर वो भी आगे और लोगों को रेकमेंड करते हैं. और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से आप खुश हैं. यूजर इज हैप्पी एंड यू आर हैप्पी. एवरीवन इज हैप्पी. लेकिन जब इसके बरक्स किया जाए, यानी यूजर आपको खुश ना हो, तो फिर क्या होगा? वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, बल्कि ही विल बिकम अ सोर्स ऑफ बैड पब्लिसिटी. नेगेटिव एडवर्टाइजिंग करेगा आपके बिहाफ पे. एंड जाहिर है, जब आपका प्रोडक्ट और आपका सिस्टम जो है उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, तो वो उसको खरीदेंगे नहीं. तो ना वो खुश हैं और ना आप खुश होंगे. In the dot-com era, one company, a dot-com startup, with an investment of $204 million, failed. It failed and went bankrupt. It went out of business. Why? उसकी एक बुनियादी वजह ये थी that the users were not satisfied with that product. So होता यह है, जब users आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, आपके सिस्टम को इस्तेमाल करें, एंड दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस, व्हाट हैपेंस? उसका रिजल्ट क्या होता है? दैट रिजल्ट्स इन satisfaction, in happiness. लेकिन इसके बरक्स, if they have a bad experience, तो क्या होता है? This results in frustration, resentment and anger. देखा आपने? What a wonderful life. कितनी मजेदार जिंदगी है. देखा आपने how happy people are using your product and your system? So the equation is very simple. User is happy, you are successful. User is unhappy, you are unsuccessful. Your product will fail and you will fail. अब सोचने की बात यह है कि इसकी वजह क्या है? Because we can keep on talking about the problems, but what is the cause of all this? How can we put things right? इन प्रॉब्लम्स को हम हल कैसे कर सकते हैं? ये जो प्रॉब्लम्स हैं, which are global in nature, they are like a disease. ये सिर्फ एक मुल्क का इश्यू नहीं है. Whether we talk about big companies in the Silicon Valley, or whether it's some small software company based in Lahore doing offshore development. All companies are encountering these problems, जिसके में हमने अभी बात की है. तो अक्लमंदी की बात तो ये है कि हम सोचें कि इसकी वजह क्या है, इसकी कॉज क्या है.
One of the primary reasons for why products, today's computer-based systems and products, कि वो अच्छे क्यों नहीं हैं, why do they fail to satisfy their users? उसमें से एक वजह वो ये है, it is the wrong process. कि process वो गलत है, कि जिन processes के तहत products बनाए जाते हैं, software बनाया जाता है, वो process ठीक नहीं है. So by focusing on the process, we can fix many things. और प्रोसेस जो है ये हर चीज को अफेक्ट करता है. और अगर आप इसको आजमाना चाहें और बाद में हम इसको जरा डिटेल से एनालाइज भी करेंगे, अगर कोई भी खराबी हो, छोटी या बड़ी, इनसाइड योर सिस्टम, इफ यू एनालाइज इट और उसकी कॉज को आप देखें, तो यू विल फाइंड आउट दैट इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग रॉन्ग इन द प्रोसेस. कोई डिफिशिएंसी है प्रोसेस के अंदर जिसके तहत ये मसाइल आ रहे हैं. So by having the right process, we can solve these problems. Now let's take a look at what the process is. And specifically, let's talk about software, because in today's computers, most of the applications are software applications. And any device usually has some sort of software. तो ये सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये क्या है? How has it evolved? If we consider today's development process as a start, then what emerges from this process is a product. But this product is not some normal product. Just like a mad scientist जो कि एक नई क्रिएशन बनाने की कोशिश कर रहा है, but somewhere something goes wrong. अब वो जो क्रिएशन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई नॉर्मल क्रिएशन नहीं बनता. It turns out to be a monster. The reason why today's software engineers and technical experts, why they are building bad products, is because their creations, just like the mad scientist is creating something which turns out to be wrong, a monster, then in the same way, today's engineers, their creations, they are lacking something. They are turning out to be like that monster. Because their creators, in other words, the engineers, the developers, they have failed to do one thing. And what is that? They have failed to imbue their creations with humanity. कि जो क्रिएशंस वो बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, उसके अंदर वो इंसानियत का पहलू नहीं है. वो चीज़, वो खुसूसियात नहीं है जिसकी वजह से जो है जब लोग उसको इस्तेमाल करें तो उनको फ़ायदा हो. So today's products, they lack the humanity. So we need to build better products. We need to build better quality products. और क्वालिटी क्या है, ये हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. But just to refresh your memory, अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात करें, then सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है? The extent to which a product exhibits the following characteristics, जिसमें बहुत से characteristics हैं, and one of those is usability. और usability क्या है? Building things from the user's perspective. But what is happening in today's products? ये जो process अपनाया जा रहा है आजकल by engineers and developers, what is happening here? They are not taking the user's perspective. In fact, they build products from a different perspective. They have a different point of view. उनके सोचने का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ है. They have an engineering point of view. They have a technical perspective. वो एक और अंदाज से सोचते हैं, which is different from the user's perspective. So this needs to be rectified. So we need to have better quality products. And when we talk about quality, then the products should have good usability. Now, usability or process का तल्लक क्या है? Well, usability has two aspects.
One aspect is that it is tactical in nature, and the other aspect is that it is strategic in nature. So we have two aspects of usability, tactical and strategic. Tactical usability क्या है? अगर कोई स्क्रीन है, मतलब कोई इंटरफेस है, आप देखते हैं कि उस पर कोई खराबी है, समथिंग इज नॉट राइट, अब आप उसको ठीक करना चाहते हैं, यानी एक कंट्रोल वो बजाय राइट के होने के वो लेफ्ट पे पड़ा है. नाउ दिस इज ए टैक्टिकल इश्यू और ये यूजेबिलिटी का इश्यू है. बट अनदर इश्यू इज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक नेचर, कि जिस प्रोसेस के तहत आप बना रहे हैं वही ठीक नहीं है, तो जाहिर है कि आपका बनाने का, काम करने का अंदाज ही गलत है, तो जाहिर है कि दी आउटपुट विल नेवर बी द राइट आउटपुट. तो यूजेबिलिटी जो है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस. वो एक छोटे लेवल पे भी है कि आप स्क्रीन पे कोई चीज़ गलत देख रहे हैं, लेकिन वो ओवरऑल जो प्रोसेस है जिसके तहत ये सारी टेक्निक्स एम्प्लॉय हो रही हैं and you are using different methods, so usability also affects that as well. Usability उससे भी affect होता है. So usability is both tactical in nature and also strategic in nature. So by fixing the process, we can ensure better usability. अब इससे पहले कि हम अब प्रोसेस के बारे में ज़रा डिटेल से डिस्कशन करें, we also need to discuss some very, very important issues. जब भी आप कोई सिस्टम या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, then first of all, you need to ask some questions of yourself और जो भी लोग आपके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं. Some fundamental questions. वो questions क्या हैं? First of all, do you understand the technologies? Do you understand the medium? Do you understand the users? And do you have commitment? अब जो पहला सवाल है, do you understand the technologies? Well, as far as this question is concerned, software engineers, developers, technicians, they are fairly adept at the technology part. Technology point of view से वो काफ़ी skillful होते हैं. They know technology. They know how to build products and systems with that technology. So this is not such a major issue. The second question, do you understand the medium? क्या आप मीडियम को समझते हैं? अब मीडियम से क्या मुराद? यहां पर हम कोई लैंग्वेज की मीडियम की बात नहीं कर रहे. Here we are talking about the interaction medium. आप कौन सी डिवाइस, कौन सा सिस्टम, कौन सा पैराडाइम इस्तेमाल कर रहे हैं? Are you using a desktop computer to use a software application, a desktop application, जो सिर्फ आपके पीसी पे चलता है? Or are you using a website on the World Wide Web through the internet? अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो अब उसका मीडियम वो क्या है? इस मीडियम के बारे में आप जानते हैं? Do you know the nature of this medium? What are the strong points of this medium? इसके weak points क्या हैं? इसके constraints क्या हैं? क्या इसके बारे में आप जानते हैं? Do you know how to manipulate this medium to achieve your projects or products goals? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? If you don't, then you're making a mistake. Third question, do you understand users? जिनके लिए आप ये प्रोडक्ट बनाने चले हैं, क्या आप उनको जानते हैं? Do you know कि ये जो आप सिस्टम बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, उसके बारे में आपको पता है? वो कौन है? वो कैसे इस्तेमाल करेगा? वो कहाँ पे इस्तेमाल करेगा? और क्यों इस्तेमाल करेगा? Do you know about the user? If you don't, then you better find out. And lastly, do you have the commitment? Knowing the technology
understanding the medium, and even knowing about the users is still not enough. इसके लिए आपको commitment भी चाहिए. Commitment on all levels in terms of the skills, expertise, and primarily in the process, in adopting the right process and following the right process. क्या commitment है? Do you have commitment? Does your manager have commitment? The organization within which you are working, who are building this product, क्या उनकी commitment है? अब जब हम commitment की बात करते हैं, तो what should we be committed to? Ultimately, well, in ACI, we are concerned with the usability aspect. So are you committed to producing a product which has good usability, which will provide your users and customers with the best user experience? क्या ये commitment है आपकी? आपकी colleagues की? आपके इदारे की? तो अगर इन सारे सवालों का जवाब आपने हाँ में दिया है, then you are on the right track. अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया है, that means that these are some of the reasons why you are building the wrong product. अब और क्या reasons हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका product ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपके users satisfied नहीं हैं? One of the reasons is a conflict of interest. What kind of conflict of interest are we talking about here? Well, one of the problems in the current development process is that the people who build the system, who implement the system, they also design the system as well. यानी जो programmers हैं, coders हैं या engineers हैं, वो system को बनाते हैं, implement करते हैं. लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि वो design भी वही कर रहे होते हैं. Now this is a conflict of interest. वो कैसे? तो इसकी काफी वजूहात हैं. First of all, do they have the skill set? एक प्रोग्रामर, एक कोडर के पास वो स्किल्स हैं कि वो एक इंटरफेस को डिजाइन करे? डेफिनेटली डिजाइन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ऐसा इंटरफेस जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, जिसकी यूजेबिलिटी ठीक हो. Do today's engineers and coders and programmers possess these skills? फिर एक और चीज, आजकल जो काम है, एक्टिविटीज हैं किसी भी जगह पे, वो काफी स्पेशलाइज्ड होते जा रहे हैं. Because of this specialization, we have specialized people for specialized tasks. So in today's world, where complexity is multiplying, it is not possible for one person, जिसको हम प्रोग्रामर कह रहे हैं या कोडर कह रहे हैं, कि वो कोडिंग भी सही करे, उसको इम्प्लीमेंट भी ठीक तरीके से करे, और वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स का भी सही ख्याल रखे, और यूजर रिक्वायरमेंट्स का भी सही ख्याल रखे. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि एक आदमी वो ये सारे काम करे और ठीक तरीके से करे. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. प्राइमरली प्रोग्रामर्स, उनका कंसर्न क्या होता है, उनका फोकस क्या होता है कि ये जो फंक्शन मैं लिख रहा हूं ये ठीक बन जाए, इसमें कोई बग्स ना हो, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसकी रिलायबिलिटी अच्छी हो. दे जस्ट डोंट हैव दैट पर्सपेक्टिव कि हमने यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को बनाना. सो देयर फोकस इज ऑन द कोड एंड नॉट ऑन द यूजर. तो ये कॉन्फ्लिक्ट है. तो यहां से हम एक की पॉइंट अखज़ कर सकते हैं. अ की पॉइंट, मेक श्योर द पीपल डिजाइनिंग द प्रोडक्ट आर नॉट द सेम वंस बिल्डिंग इट. और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं बन रहा? तो हमने शुरू में कहा कि प्रोसेस जो है ये एक बुनियादी फैक्टर है. अब होता यह है कि अक्सर प्रोसेस होता ही नहीं है. देयर इज नो प्रोसेस. काम करने का कोई ऑर्गेनाइज तरीका है ही नहीं. ना रिक्वायरमेंट्स बनाने का प्रोसेस है, ना डिजाइन का किसी को पता है. एंड वेरी ऑफन द प्रोग्रामर्स दे जंप स्ट्रेट इनटू द कोडिंग एक्टिविटी. फौरन कोड करना शुरू कर देते हैं.
कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है. सो वेरी ऑफन देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ अ प्रोसेस. तो अगर एक प्रोसेस हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो उसके बहुत से फायदे आपको नजर आएंगे. अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि प्रोग्रामर्स का पर्सपेक्टिव क्या होता है. दे हैव एन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव. उनको सोचने का अंदाज वो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूमता रहता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स एंड टेक्नीशियंस, दे लिव in a universe of databases, functions, and various technical issues. उनका सोचने का अंदाज यूजर की तरफ नहीं होता. तो how can you achieve success? तो जाहिर है अंदाज जो है सोचने का वो आपका ठीक होना चाहिए. तो ठीक अंदाज क्या है फिर? The right approach is to look at the user and consider the user's goals. कि यूजर के गोल्स क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहता है. तो जब आप ऐसा करेंगे then you will find that you will build a better quality of product, यानी जिसकी यूजेबिलिटी अच्छी है. And because of that you will be successful. तो ये जो माइंडसेट है, ये सोचने का अंदाज है, इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं. दिस इज नोन एज यूजर सेंटर्ड डिजाइन. दिस इज अ फिलॉसफी, अ वे ऑफ थिंकिंग. सो इंजीनियर्स और डेवलपर्स का जो अप्रोच क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है? दैट इज टेक्नोलॉजी सेंट्रिक. हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है. टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए और अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, लेकिन आपको सोचने का अंदाज, आपकी फिलॉसफी, आपका माइंडसेट वो यूजर सेंटर्ड होना चाहिए. नाउ व्हाट दिस मीन्स इज दैट द यूजर इज द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स. इंजीनियर्स जो हैं वो एक खास प्रिज्म के तहत चीजों को देखते हैं जब वो एक प्रोडक्ट या सिस्टम बना रहे होते हैं. And that prism is of technology. If you want to build a good product with good usability, तो आपको prism दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा. आपको यूजर को यूनिवर्स का सेंटर बनाना पड़ेगा. आपका हर काम, आपकी हर एक्टिविटी, आपका हर जो आर्टिफैक्ट जो बनेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, that should be based around the goals of the user. कि यूजर क्या चाहता है, यूजर के लिए क्या अच्छा है, यूजर को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस हम बेहतर कैसे कर सकते हैं. तो जब आपका मरकज, आपके सोचने का अंदाज जो है वो यूजर के इर्द गिर्द घूमेगा, यू विल फाइंड कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें यूजेबिलिटी के असरात वो पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएंगे. सो द सेंटर ऑफ यूनिवर्स इज द यूजर सेंटर्ड डिजाइन. सो यहां पे एक की पॉइंट है. द की पॉइंट हियर इज द यूजर इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल वर्क. अगर आप में से किसी ने अगर किसी प्रोजेक्ट में काम किया है जिसमें आपने कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई है, या अगर आपको एक्सपीरियंस हो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने का, यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी सिचुएशंस वेयर पीपल दे हैव डिस्कशंस, where they have debates and they have arguments. किस चीज के बारे में? कि डिजाइन कैसा होना चाहिए, इंटरफेस को कैसे बनाया जाए, ये इंटरफेस पे जो एलिमेंट है ये इसको कहां पे रखा जाए, ऊपर हो, नीचे हो, लाल हो, पीला हो. तो इंटरफेस के ऊपर we have often heated discussions. Now, how can we decide and resolve these problems? अब एक टीम है, उसमें 4, 5, 6 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, even more. How do we resolve the issue of how to design? कि क्या चीज बनाई जाए और कैसे उसको पेश किया जाए. So,
अभी मैंने उसका एक सोल्यूशन बताया है कि आप यूजर सेंटर डिजाइन फिलॉसफी और अप्रोच अपनाएं, एंड बिकॉज यू अडॉप्ट दिस फिलॉसफी, तो आपका जो रेफरेंस है वो यूजर है. इट इज नॉट योर पर्सनल ईगो, इट इज नॉट योर सब्जेक्टिव ओपिनियन. आपका हर जो बात है वो एक रेफरेंस के तहत, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत वो चीज सामने आनी चाहिए. अगर आप यूजर को सामने रखेंगे और अपनी राय को और लोगों की राय को कंसिडर करेंगे, तो उस पर जजमेंट पास करना और ये देखना कि ये बेहतर क्या है वो काफी आसान हो जाता है, बिकॉज यू हैव अ रेफरेंस. लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि लोग वो अपनी ओपिनियंस दे रहे होते हैं, एंड दीज ओपिनियंस आर बेस्ड अपॉन देयर whims एंड फैंसीज. वो उनकी जाती जो पसंद नापसंद पर वो बेस करता है. सो वन वे ऑफ रिजॉल्विंग दीज ट्रिकी इश्यूज ऑफ डिजाइन, क्योंकि इसके बारे में हर एक की राय होती है, सो इसको रिजॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत तरीका है यूजर सेंटर्ड डिजाइन. तो ये तरीका जो है, ये सोच ये आपकी भी हो और इसके साथ साथ जो लोग भी आपके साथ उस टीम में काम कर रहे हैं उन सब की हो. But not just that, in fact, at all levels of the hierarchy in your organization, this should be permanent, this way of thinking. इंशाल्लाह आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पॉलिसी क्वालिटी कितनी बेहतर हो जाएगी. So now let's start talking about the process itself. अब हम आते देखते हैं कि प्रोसेस की डिटेल्स क्या हैं. तो सबसे पहले इसकी इवोल्यूशन, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई है. नाउ इन द वेरी बिगिनिंग सॉफ्टवेयर वाज प्राइमरली डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स. अब प्रोग्रामर्स होते थे, वो सॉफ्टवेयर बनाते थे, कोडिंग करते थे, प्रोग्रामिंग करते थे और टेस्ट भी खुद ही करते थे. और यही लोग वो उसको डिजाइन भी खुद ही कर रहे होते थे. सो एवरीथिंग was done by one person. So in the beginning, this was how software was developed, by programmers who did basically nearly everything. Uske baad, in the second stage of evolution of the software development process, when things started to become unmanageable and more complex, इसमें features बढ़ गए, तो फिर managers, they also got involved. So these managers would manage the time and the cost. वो बजट को भी देखते थे, and they used to create various documents, requirements documents. और programmers उसको कोड और टेस्ट करते थे. इसके बाद, when computers became more and more popular, and the use of software applications became more common, और प्रॉब्लम सामने आई, यानी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर प्रॉब्लम सामने आई, तो अवेयरनेस डेवलप होनी शुरू होगी कि हमें डिजाइन कुछ बेहतर करना चाहिए. सो इन द थर्ड स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, designers also got involved, and people who test the product also became involved in the development process. तो managers वो इनिशिएट करते थे और कुछ requirements बनाते थे, programmers उसको कोड करते थे, कुछ टेस्टिंग वो खुद करते थे और कुछ जो है टेस्टर्स करते थे. And the designers would then make sure that the look and feel is appropriate. अब ये जो designers का जो काम है in the third stage of evolution, this was really an afterthought. ये सबसे आखिर में एक काम होता था और काम भी उनका on the superficial level, यानी कि इंटरफेस पे जो चीज नजर आ रही है क्या वो खूबसूरत है, क्या आंखों को अच्छी लगती है, तो ऊपर ऊपर से वो उसको उसकी लुक एंड फील, उसकी एस्थेटिक्स को बेहतर बनाते थे. एंड लाइक आई सेड, दिस वाज एन आफ्टरथॉट.
one of the very last things done in the development process. तो पहले requirements बन गई, फिर कोडिंग हो गई, और उसके बाद टेस्टिंग हो गई, और बाद में उसको थोड़ा बहुत ठीक करके तो फिर उसको शिप कर दिया. So obviously this was not a good approach. Design was never actually an integral part of the development process. वो एक आफ्टर थॉट था. और अभी भी अक्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर, अक्सर प्रोडक्ट्स के अंदर, अक्सर सिस्टम्स के अंदर यही अप्रोच अपनाई जाती है कि रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी लिख ली और फिर कोड करना शुरू कर दिया. कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, और आखिर में जब प्रोडक्ट लॉन्च होना शुरू हुआ तो उससे कुछ देर पहले तो उसको सुपरफिशियली ठीक करने की कोशिश करते हैं लोग. But that doesn't address the core issues, the usability. क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि यूजेबिलिटी सिर्फ जो ऊपर की ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं है. Usability is affected by so many other factors. So those need to be built in. और ये काम कब होना चाहिए? ये टेस्टिंग से पहले होना चाहिए, बल्कि कोडिंग से पहले होना चाहिए. From the very beginning, there should be this focus on designing the right product with the correct usability. So, in the fourth stage of evolution of the software development process, इसमें मज़ीद कुछ changes आई. So, इसमें initiate का एक phase था और उसके बाद design. So now, there were more specialized people doing the design activity. और उसके बाद coding, जो कि प्रोग्रामर्स का डोमेन है, एंड देन टेस्टिंग. सो टेस्टिंग एक तो जो है टेस्टर्स करते थे जिसमें बग्स वो डिटेक्ट करते हैं, एंड द अदर काइंड ऑफ टेस्टिंग इज फ्रॉम द यूजर एस्पेक्ट, फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव. और इसकी जो फीडबैक है वो पिछले सारे स्टेजेस में जाती है. वो डिज़ाइन के फेज में भी जारी है और फिर जो इनिशिएशन के फेज है उसमें भी जारी है. सो जो लोग ये काम करते हैं, वी कॉल देम यूजेबिलिटी एक्सपर्ट्स और यूजेबिलिटी प्रैक्टिशनर्स. सो दिस फोर्थ स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज व्हाट मैच्योर कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स. यानी वो कंपनीज, वो लोग जो कि अब इश्यूज को समझते हैं, यानी वो यूजेबिलिटी की अहमियत को जानते हैं, पहचानते हैं. दे आर नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस जिसमें डिजाइन बाकायदा एक एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी वो कोडिंग से पहले होती है. और जब टेस्टिंग की जाए तो यूजर के पर्सपेक्टिव से टेस्टिंग की जाए, नॉट जस्ट फ्रॉम दी फंक्शनैलिटी एस्पेक्ट. सिर्फ बग्स डिटेक्ट करने के लिए टेस्टिंग ना की जाए, लेकिन यूजर के पर्सपेक्टिव से की जाए. सो डिजाइन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज डिजाइन? डिजाइन क्या है? लेट्स टेक अ लुक एट सम डेफिनेशंस. डिजाइन is the conscious and intuitive effort to impose meaningful order. A definition by a person called Victor Papanek. डिजाइन का मकसद क्या है? डिजाइन का मकसद ये नहीं है कि आप खूबसूरत रंग की चीजें बना लें, ऐसी चीजें जो सिर्फ आपको देखने में अच्छी लगें, बल्कि उसका मकसद यह है कि आप चीजों को ऑर्गेनाइज करें, उसको कोई मीनिंगफुल ऑर्डर दें ताकि लोगों को समझ में आए. अनदर डेफिनेशन ऑफ डिजाइन, अ मोर मॉडर्न डेफिनेशन, is that design is understanding the user's wants, needs, and motivation, and understanding the context. It is understanding the business, technical, and domain requirements and constraints. Translating this knowledge into plans for artifacts or artifacts themselves, whose form, content, and behavior is useful, usable, and desirable, as well as economically viable and technically feasible. A definition
brought to you by Cooper. So ये देखा आपने कि डिजाइन जो है वो कितना वसी है, ये कितना ब्रॉड है कि आप यूजर के गोल्स, उसके नीड्स को देख रहे हैं, उसकी मोटिवेशंस को आप देख रहे हैं, उसकी इमोशंस को आप कंसिडर कर रहे हैं, आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को भी देख रहे हैं, आप जो है टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन नॉट डिजाइन समथिंग व्हिच कैन नॉट बी बिल्ट. तो उस चीज का ख्याल करना भी जरूरी है. और साथ ही साथ इकोनॉमिकली वायबल एंड टेक्निकली फीजिबल. So this is a more comprehensive definition of design. तो डिजाइन क्या है? ये आज के टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, डिवाइसेस, सिस्टम्स में मिसिंग लिंक है. The problems that we are seeing and experiencing, तो अगर डिजाइन का एलिमेंट वो इसमें ठीक कर लिया जाए तो फिर the problems will be solved. And we can do this by adopting the right design methods. और उससे पहले the right process, the right development process. Just a little more discussion about design. Design जो है उसके different dimensions हैं. अभी इस definition में हमने कई चीज़ों पे हमने टच किया. तो डिज़ाइन की different dimensions वो क्या है? Well, there is a dimension of form, meaning, and behavior. Now, what is form? Form is what you can visibly see. और ये ट्रेडिशनल फोकस डिजाइनर्स का वो यही था कि जो चीज आपको नजर आ रही है वो देखने में अच्छी लगे. It should be aesthetically pleasing. So traditionally, that was the focus of design. तो कुछ देर बाद there was focus on the meaning as well. कि ये जो डिजाइन में जो एलिमेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, इसकी मीनिंग पर फोकस होना चाहिए, द कंटेंट. एंड देन केम अलोंग अ न्यू फोकस, एंड दैट वाज बिहेवियर. तो तीसरा डायमेंशन बिहेवियर का. बिहेवियर से मुराद यहां पे द वे दैट अ सिस्टम इंटरैक्ट्स विद ह्यूमंस. कि ये सिस्टम है, ये प्रोडक्ट जो है, इसका रवैया क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसके इंटरेक्शन का अंदाज क्या है इंसानों के साथ. सो दिस वाज द नेक्स्ट फोकस एंड द करंट फोकस ऑफ डिजाइन, कि बिहेवियर के ऊपर, इंटरेक्शन के ऊपर. एंड द मैच्योर डिजाइनर्स एंड कंपनीज, दे नाउ फोकस ऑन ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट्स, द फॉर्म, the meaning as well, but also behavior. Now here it's important to make a distinction between different kinds of design. आपने interface design का term वो सुना होगा. What is interface design and how does that differ from other types of design? तो interface design की जब हम बात करते हैं तो उसमें normally हम surface level की बात कर रहे हैं. यानी जो आपको सरफेस पे नजर आ रहा है, द एलिमेंट्स विच यू कैन सी, उसकी प्लेसमेंट वो क्या होनी चाहिए. सो दिस इज यूजुअली रिफर टू एज इंटरफेस डिजाइन. लेकिन अगर हम बिहेवियर को डिस्क्राइब करना चाहें तो उसके लिए हमें एक और टर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बिकॉज इंटरफेस डिजाइन डज नॉट रिफ्लेक्ट द बिहेवियरल नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट और सिस्टम. उसके लिए हम इंटरैक्शन डिजाइन की टर्म इस्तेमाल करते हैं. सो इंटरैक्शन डिजाइन इज द डेफिनेशन एंड डिजाइन ऑफ द बिहेवियर ऑफ आर्टिफैक्ट्स, एनवायरमेंट्स एंड सिस्टम्स, as well as the formal elements that communicate that behavior. So herein is the distinction between different types of design. Interface design भी है और interaction design भी है. तो इस कोर्स में हम दोनों चीजों को कंसिडर करेंगे. And here endeth today's lesson. So that brings us to the end of today's lecture today. आज के लेक्चर में हमने HCI प्रोसेस और मॉडल के बारे में जाना. HCI प्रोसेस की अहमियत क्या है,
प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आजकल हम फेस हो रहे हैं और उसका तल्लुक प्रोसेस के साथ क्या है वो हमने कंसिडर किया. वी ऑल्सो लुक्ड एट द डेवलपमेंट प्रोसेस कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वो क्या है और उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई है और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ जगहों पर पेश आ रहे हैं. In the next lecture, we'll talk about specific process models. So until next time, take care. Allah Hafiz.